transform will convert both periodic and non-periodic. Good. So nice answer. So Fourier. So I am also recording our meeting, today's meeting, because we have to record each and every lecture, right? So the difference between Fourier series and Fourier transform is that Fourier series is used for what type of signals? Periodic. Very good. Periodic. Periodic signals. However, the Fourier transform, we can use it for what type of signals we can use it for? Both periodic and non-periodic. Both periodic as well as non-periodic. Very good answer. Right? So what is frequency spectrum? What is frequency spectrum? Anyone, what is frequency spectrum? How the frequency, how the magnitude of the signal, it changes with the frequency, or when we plot the magnitude of the signal versus frequency, it is called magnitude spectrum, right? And when we plot the phase of the signal versus frequency, it is called phase spectrum, and combined we can also call it as frequency spectrum, right? So why we use Fourier series, why we use Fourier transform? Because we are having information that at this particular frequency, this is the magnitude of the signal, and at this particular frequency, this is the phase of the signal. So we will be able to find what are the frequencies that are present in signal, and what are the phases, and what are the magnitude present at that different frequencies, right? So this information is provided by phase spectrum, magnitude spectrum, and both of these are called frequency spectrum. So what are the conditions for the existence of Fourier transform? Anyone? What are the conditions? What are the conditions? Because there are three conditions. I've already told you. Tell me. हाँ जी, अभिषेक कुमार, आप बताइए कौन कौन सी कंडीशंस हैं? अभिषेक कुमार. यस सर. हाँ बताइए कौन कौन सी कंडीशंस हैं which are to be satisfied? Absolute integral, sir. हाँ, very good. Second, sir, infinite number of maximum and minimum within any finite interval. Good, good. Nice answer. Good. So let us start today's lecture. So what we are having first is Fourier transform of double-sided exponential signal. Double-sided means it exists on both the sides. So signal is xt equal to a e raised to the power minus a mod of t. So this we can write it as a e raised to the power plus at when t is minus. So minus a and minus t, it becomes plus at, and xt is equal to a e raised to the power minus at for t is equal to 0 to infinity, and for t is equal to minus infinity to 0, the signal becomes a e raised to the power plus at, right?
So now we know that from the definition of Fourier transform, what we are having, if we want to find the Fourier transform of any signal, we write it as इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी xt। xt वो सिग्नल है जिसका हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट, into e raised to the power minus j ohm t dt. So this is from the definition of Fourier transform. Now what we are having, xt is given as xt is a e raised to the power plus at। ये कब है, जब t माइनस इंफिनिटी से जीरो है। ये देखो हमने पुट कर दिया वैल्यूज, माइनस इंफिनिटी से जीरो, xt की क्या वैल्यू है, a e raised to the power at इंटू e raised to the power माइनस j ohm t, ये डेफिनेशन के हिसाब से आएगा साथ में, इंटू dt प्लस, अब xt सिग्नल दिस इज आल्सो इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस at। ये कब है, जब t की वैल्यू जीरो से इंफिनिटी है, राइट। सो ये हमने पुट कर दिया, एंड व्हाट वी आर हैविंग देन, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू जीरो a e रेज टू द पावर, नाउ बेस इक्वल, द पावर्स विल ऐड। So what we are having, we are having a minus j ohm into t dt, एक ये टर्म आ गई, और दूसरी टर्म हमारे पास आ गई a e raised to the power minus a plus j ohm into t dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a कांस्टेंट है, इसको हम कैपिटल A कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड भी ले सकते हैं, e raised to the power a minus j ohm into t एज इट इज आ जाएगा, और इसका जो a minus j ohm नीचे आ जाएगा, दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, और सेकंड टर्म आ जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म की जो लिमिट्स हैं वो जीरो से माइनस इंफिनिटी से जीरो हैं, और दूसरे वाली की हैं जीरो से इंफिनिटी, और इसको जब हम पुट करेंगे तो वी विल गेट, एंड then we solve it. It is very good explanation given in this step by step in this example, and what we get, 2a capital A square plus ohm square, right? So this is what we get. So this you have to remember कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, उसका बेसिक डेफिनेशन आप उसको याद करो, फिर आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, एंड देन वी कैन फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। इसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टेल मी नाउ, इफ वी आर हैविंग ए डबल साइडेड एक्सपोनेंशियल सिग्नल, लेट अस से xt is equal to 4 e raised to the power minus 3 mod of t। दोबारा सुनिए, xt equal to 4 e raised to the power minus 3t, राइट। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, जो हमने निकाला होगा उसके हिसाब से क्या आएगा, टेल मी एनीवन, डबल साइडेड का, एनीवन? हमारे पास स्मॉल ए क्या था, व्हाट इज स्मॉल ए, जो मैंने लिखवाया आपको, व्हाट इज स्मॉल ए, हाँ, व्हाट इज स्मॉल ए, दोबारा से सुनिए, लिसन अगेन, कि xt हमारे पास है 4 e रेज टू द पावर माइनस 3 मॉड ऑफ t, ठीक है। तो कैपिटल ए क्या हो गया हमारे पास, व्हाट इज कैपिटल ए, बोलो,
व्हाट इज कैपिटल ए? ताने आप बताइए, व्हाट इज कैपिटल ए? तानिया, व्हाट इज कैपिटल ए? हाँ जी, आयुष गुप्ता, आयुष गुप्ता। यस सर। हाँ, व्हाट इज कैपिटल ए? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो कैपिटल ए क्या होगा उसमें? सर आप एग्जाम्पल हैं? सर आप एक बार एग्जाम्पल रिपीट कीजिए। हाँ, मैं फिर से सुनिए कि xt इज इक्वल टू 4 e रेज टू द पावर -3 मॉड ऑफ t, ये है सर 4। हाँ, तो यहाँ पे कैपिटल ए की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे और स्मॉल ए क्या होगा? सर -3। स्मॉल ए क्या होगा? सर -3। हाँ, दैट इज -3। लेकिन इसमें हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि जो आंसर है उसमें ए ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ना, यहाँ पे माइनस अगर 3 होगा, -3 टी होगा तो ए 3 आएगा, ठीक है। सो इस आंसर में हम 3 पुट करेंगे। सो 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट। कितना आ गया? 4 दिए 12, 24 डिवाइडेड बाय 9 प्लस ओम स्क्वायर। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब कोई भी आपको ऐसे दिया होगा तो यू कैन सॉल्व दैट। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड, यू कैन फाइंड दिस। अब देखिए जीरो पे इसकी वैल्यू है, दिस इज ओरिजिनल सिग्नल दैट इज गिवन एज a e रेज टू द पावर मॉड ऑफ t। अब t को आप 0 पुट करोगे, e रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? a है, राइट। जैसे जैसे t पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, जैसे जैसे t नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। सो दिस इज ओरिजिनल सिग्नल xt। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड देखना है। सो मैग्नीट्यूड का आया क्योंकि इसमें j वाली टर्म 0 है, देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट इन दिस, राइट। सो ओनली रियल पार्ट इज देयर। सो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इट्स अंडर रूट। सो ये हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड। सो इसका मैग्नीट्यूड सेम ही आ जाएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है। अगर इसका स्क्वायर करके हम अंडर रूट करेंगे then we will get the same. So this is its magnitude. Now you see, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या है? 0 है। जब फ्रिक्वेंसी 0 है तो हमारे पास आंसर आ गया 2 कैपिटल ए बाय ए, 2 कैपिटल ए बाय ए, 0 पे इतना आ गया, ठीक है। सो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर सेम है, तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। सो ऐसे ऐसे ये डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली ऑन द नेगेटिव साइड, जब हम फ्रिक्वेंसी नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, ओम स्क्वायर है, सो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा और सेम सिमेट्रिकल आ जाएगा ये मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, राइट। सो दिस इज हाउ वी गेट द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। सो अनदर इज फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए कांस्टेंट सिग्नल। कोई भी सिग्नल कांस्टेंट है उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ xt इज इक्वल टू ए कुछ भी हो सकता है हमारे पास, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, मींस कोई कांस्टेंट है, उसका हमको फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, राइट। Now, by the definition of Fourier transform, if we apply it on directly on this signal xt, because xt is constant,
द कांस्टेंट विल नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। जो इसकी पहली कंडीशन है कि जो हम इंटीग्रेशन करेंगे सिग्नल का एक्सटी dt का, दैट शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने इस सिग्नल को इस तरीके से लिख लिया कि x1t दिस इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस at, जो हम निकाल के हटे हैं पहले। ठीक है, a e रेज टू द पावर माइनस at। ठीक है, सो ये t नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे जब t माइनस इन्फिनिटी से जीरो है। जब जीरो से इन्फिनिटी है तो a e रेज टू द पावर माइनस at हो जाएगा। ठीक है, अब xt इज इक्वल टू a, राइट, लिमिट a टेंड्स टू जीरो x1t, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जैसे ही हम a को जीरो लिमिट को टेंड करवाएंगे सो e रेज टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास a ही आ जाएगा। ठीक है, सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। नाउ फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका हम फाइंड आउट करेंगे, फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, सो दैट इज लिमिट a टेंड्स टू जीरो x1t, इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सो a टेंड्स टू जीरो, लिमिट a टेंड्स टू जीरो x1 j ओम आ गया। अब हमको पता है, हम पहले ही इसका फाइंड आउट करके हटे हैं कि इसका a e रेज टू द पावर माइनस a मॉड ऑफ t, इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2a कैपिटल A ओम स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब हमने इसको लिमिट पुट करना है, लिमिट a टेंड्स टू जीरो, राइट। जब हम ये पुट करेंगे लिमिट a टेंड्स टू जीरो, द अबव इक्वेशन इज जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओम एक्सेप्ट एट ओम इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हर एक वैल्यू पे जीरो होगा, लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी जीरो लेंगे तो a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल a के साथ स्मॉल a, सो इट विल बी 2 कैपिटल A बाय A आ जाएगा, 2 कैपिटल A बाय A, राइट। सो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अनदर इज एट ओम जीरो द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन इंपल्स। सो जब फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो उस पर कोई आउटपुट आती है तो हम कहते हैं कि ये एक इंपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्नल इंपल्स सिग्नल है। So let it be k delta ohm at del is equal to 0. It is 0 when ohm is not equal to 0. So the magnitude k को हम evaluate कर सकते हैं. So this is how we can evaluate the magnitude of k. So minus infinity to infinity, क्योंकि इसको हमने पहले ही फाइंड आउट किया हुआ है 2aa ओम स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d ओम। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 2 pi a, राइट। सो अब हमारे पास फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, एक्स जे ओम। सो इसको k की हमने वैल्यू पुट कर दी 2 pi a इंटू डेल्टा ओम। सो इसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यू गो थ्रू दिस, जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट दिया है, a दिया है मान लो, तो उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म आएगा 2 pi a डेल्टा ओम। अगर हमारे पास मान लो we are asked to find the Fourier transform of 10, so then it will be 2 pi 10 delta ohm, right? So ये आएगा 20 pi delta ohm, right? In this way we can find. Now you see again here, it is not having any imaginary part, it is only having real part, right? तो इसका फेस प्लॉट नहीं आएगा, ओनली मैग्नीट्यूड प्लॉट आएगा। अब आप देखो कि जब डेल जीरो है तो हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी जीरो है, सो डेल जीरो इंपल्स सिग्नल है, उस पे इसकी कुछ वैल्यू होगी। एट ऑल अदर इंस्टेंट्स डेल जो इंपल्स सिग्नल है वो जीरो होता है, ओनली जीरो पे ही ये 1 होता है।
इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 0 पे 2 पाई a आ रहा है और ऑल अदर इंस्टेंट्स पे इसका मैग्नीट्यूड 0 है। सो दिस इज मैग्नीट्यूड रिस्पांस। एंड जो सिग्नल xt है वो हमको पता है कि सभी t की वैल्यू के लिए उसका मैग्नीट्यूड a है। ये सिग्नल xt है, ये इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस है राइट हैंड साइड में, राइट। अब हमको कहा गया है कि फाइंड द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SGN t के साथ लिखते हैं। इसकी वैल्यू 1 होती है जब t 0 से बड़ा होता है एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल इज -1 when t is less than 0, when t is less than 0. So the signum function को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल की फॉर्म में। SGN of t this is equal to limit a tends to 0। अब आप देखें कि जब हम a को 0 पुट करेंगे e रेज टू द पावर 0, सो ये 1 हो जाएगा। सो ut राइट माइनस e रेज टू द पावर 0, अगेन इट इज 1 u ऑफ माइनस t। ठीक है, अब हमको पता है जब t ग्रेटर होगा 0 से तो ut 1 होता है और u ऑफ माइनस t क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये सिग्नल की वैल्यू 1 रहेगी जब हम t से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे। जब t से लेस पुट करेंगे तो u ऑफ माइनस t है जो ये 1 हो जाएगा और ut है जो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। सो दिस सिग्नल रिप्रेजेंट्स द सेम, दैट इज सिग्नम फंक्शन, बट हमने क्या किया, इसको e रेज टू द पावर -80 ut और -e रेज टू द पावर 80 u ऑफ माइनस t में एक्सप्रेस कर लिया, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस। अब हम इस पे फॉरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे क्योंकि इसका हमको फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, बिकॉज वी आर आस्क्ड टू फाइंड द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन। So by the definition of Fourier transform, what we are having, xj ohm, this is equal to -infinity to infinity xt e raised to the power -j ohm t dt। ठीक है, सो xt हमारे पास क्या है, लिमिट a टेंड्स टू 0 e raised to the power -80 ut minus e raised to the power 80 u of minus t into e raised to the power -j ohm t dt। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस वी हैव टू सॉल्व। Now we are having limit a tends to 0, this is limit a tends to 0। so हमने इसको ब्रेक कर लिया फ्रॉम 0 टू प्लस इंफिनिटी, व्हेन t is from 0 to plus infinity, this ut is 1, this ut is 1, and that's why we have written e raised to the power -80 e raised to the power -j ohm t dt। and when t is from -infinity to 0, u of minus t is 1, so that's why we have written
and this u of t is 0. So that's why we have written minus infinity to 0 e raised to the power t e raised to the power minus j ohm t dt. ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. So this is now simple. E raised to the power 0 is 1, e raised to the power minus infinity is 0. So इसको जब आप सॉल्व करोगे, these are very easy steps that are given, because from the integration ये हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाएगा, e raised to the power minus a plus j ohm into t divided by minus a plus j ohm. फिर हम इसकी लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, and when we solve this, so we are having this is equal to 2 over j ohm. इसका आंसर आ जाएगा. Now you see, जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया सिग्नम फंक्शन का, we are not having real part, we are having only imaginary part, right? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? Anyone? What will be its magnitude? मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इट्स अंडर रूट, राइट? तो इसका कितना होगा मैग्नीट्यूड? व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड? एनीवन? सर तो हाँ बोलो शाबाश. क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है, ओनली इमेजिनरी पार्ट इज देयर. हाउ एनीवन? अभिषेक आप बताइए. हाँ जी अभिषेक आप बताइए. तो ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया 2 बाय जे ओम. तो अब आप देखेंगे कि ये ओरिजिनल सिग्नल है, एक्स टी है, जो इसकी वैल्यू +1 है जब t 0 से बड़ा है, इसकी वैल्यू -1 है जब t 0 से कम है. तो ये इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ गया. ये देखिए, क्योंकि हमने क्या हुआ, हमने इसको उस फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि इसका j क्या है, ओनली रियल पार्ट इसमें 0 है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका मैग्नीट्यूड का आ गया 2 बाय ओम ही आ गया है, राइट? और जब ओम 0 होगा, फ्रिक्वेंसी 0 होगा, तो समथिंग बाय 0, सो ये ऊपर को चला जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इट टेंड्स टू इंफिनिटी इन दिस डायरेक्शन. एंड व्हेन इट इंक्रीजेस, जब ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगा तो 2 बाय 2, तो जब ये ओम 2 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगा. यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा, क्योंकि 2 बाय 2 इसका वैल्यू 1 होगा जब फ्रिक्वेंसी 2 है. जब फ्रिक्वेंसी 4 है, सो 2 बाय 4 इट विल बी 0.5, ऐसे कम होता जाएगा. जब हम ओम को बढ़ाते जाएंगे, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और ये इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, राइट? सो दिस इज हाउ वी गेट. नेक्स्ट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल. अब यूनिट स्टेप सिग्नल का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, राइट? यूनिट स्टेप सिग्नल वी नो दैट ut is equal to 1 for t is greater than equal to 0, and ut is equal to 0 for t is less than 0. Is it clear? So anyone, what is step signal? What is step signal?
हाँ भी तानिया, आप बताइए व्हाट इज स्टेप सिग्नल? व्हाट इज स्टेप सिग्नल तानिया? हाँ जी सलोनी, आप बताइए सलोनी। सलोनी, यस सर। हाँ बताइए कि स्टेप सिग्नल क्या होता है बेटा? व्हाट इज स्टेप सिग्नल? सर जो रियल नंबर के लिए फंक्शन यूज होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? व्हाट इज स्टेप सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना होता है? स्टेप सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना होता है? हाँ जी बेबी, आप बताइए बेबी। बेबी आर यू लिसनिंग? बेबी, हाँ भाई बेबी आर यू लिसनिंग? रिद्धिमा शर्मा, रिद्धिमा शर्मा, गिव द आंसर। यस सर। स्टेप सिग्नल क्या होता है बच्चे? व्हाट इज स्टेप सिग्नल? टेल मी व्हाट इज स्टेप सिग्नल? सुष्मिता कुमारी, सुष्मिता कुमारी, सुष्मिता कुमारी, आर यू हियरिंग? सुष्मिता कुमारी, मिनाल। एक ही होता है। हाँ बच्चे बताइए स्टेप सिग्नल क्या होता है? सुष्मिता कुमारी, व्हाट इज स्टेप सिग्नल? इसकी मैग्नीट्यूड एक होती है सर। क्या? हाँ बोलिए, व्हाट इज स्टेप सिग्नल? व्हाट इज स्टेप सिग्नल? चलो कल मैं आपसे सभी सिग्नल्स का पूछूंगा, जो बेसिक सिग्नल्स हैं। स्टेप सिग्नल है, रैंप सिग्नल है, पैराबोलिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। यू हैव टू टेल मी कि ये सिग्नल्स क्या होते हैं, राइट? तो इसके बारे में आपको ये बताना है, ऑल सिग्नल्स के बारे में, राइट? हाँ भी सुन रहा है आपको? यस सर। हाँ तो कल पढ़ के आना, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा ही कल, राइट? तो कल आपका एक टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे सभी सिग्नल्स। व्हाट इज इवन सिग्नल, व्हाट इज ऑड सिग्नल, कॉजल सिग्नल क्या है, नॉन कॉजल सिग्नल क्या है, राइट? यस सर। सिस्टम क्या है, सिस्टम और सिग्नल में क्या फर्क है, ठीक है? सो दिस इज now we want to find the Fourier transform of unit step signal. So unit step signal क्या होता है? जिसकी वैल्यू 1 होती है जब t
जीरो या जीरो से बड़ा होता है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो व्हेन t इज लेस देन जीरो। ठीक है, ये स्टेप सिग्नल होता है। जैसे ही t की वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। व्हेन t की वैल्यू जीरो से कम होगा तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द स्टेप सिग्नल। ये यहाँ पे दिया तो हुआ है, ut इज इक्वल टू 1 फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड ut is equal to 0 for t is less than 0, right? Now जो सिग्नम फंक्शन है we can represent it as 2ut minus 1। ये ऑलरेडी हम करके हटे हैं, 2ut minus 1 जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया था। यहाँ देखिए आप, हाँ राइट। तो इसको हम 2ut minus 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो स्टेप सिग्नल है, देखो ut is equal to 1 for t is greater than equal to 0। इसका मतलब है कि ut 1 हो जाएगा। सो 2 into 1 2, 2 minus 1 1 आ जाएगा, राइट। जब t 0 से बड़ा है। जब t 0 से छोटा है तो ut क्या हो जाएगा, 0। 2 into 0 0, 0 minus 1 minus 1। तो इसका मतलब हम सिग्नम फंक्शन को ut सिग्नल की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड इफ वी वांट टू ऑब्टेन ut सिग्नल, सो ut इज इक्वल टू 1/2 fgn t plus 1, इसका 1/2 हो जाएगा। सो दिस इज ut सिग्नल। अब हम इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। ऑन टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, so what we are having, we have to take the Fourier transform of 1/2 and we have to take the Fourier transform of 1/2 SGN of t, right? अब Fourier transform 1 का क्या होगा, पहले हम निकाल के हटे हैं कि कांस्टेंट का Fourier transform क्या होता है। Fourier transform of a क्या था जो हमने फाइंड आउट किया है, व्हाट इज Fourier transform of a कांस्टेंट, पीछे हमने फाइंड आउट किया था सर 0.25 हाँ 2 पाई ओम सर 2 पाई ए। ये देखिए हमने यहाँ फाइंड आउट किया था कि कांस्टेंट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। दिस इज 2 पाई ए डेल्टा ओम। तो ये है हमारे पास, ये देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए कांस्टेंट। सो इसका क्या होता है, 2 पाई ए इंटू डेल्टा ओम, राइट। सो इसको हम यूज करेंगे इसमें, क्योंकि ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 है। अब हमारे पास कैपिटल ए क्या हो गया, 1। सो इसीलिए हमने लिखा है 2 पाई डेल्टा ओम, क्योंकि कैपिटल ए हमारे पास 1 है। ठीक है, सो ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया। अब हम पहले फाइंड आउट करके हटे हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन SGN ऑफ t, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 2/j ओम, राइट। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 1/j ओम आ गया। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास पाई डेल्टा ओम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ut दिस इज इक्वल टू पाई डेल्टा ओम प्लस 1/j2। अब आप देखेंगे कि इसमें रियल पार्ट भी है और इसमें इमेजिनरी पार्ट भी है, राइट। रियल पार्ट भी है और इसमें इमेजिनरी पार्ट भी है, ठीक है। तो ये सिग्नल हमारे पास xt आ गया, ut इज 1 और ये इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ गया, राइट। जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी 0 होगा तो समथिंग बाय 0, सो इट विल बी बहुत बड़ा हो जाएगा, इट इज इंफिनिटी। सो इसलिए 0 पे इसका बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड दिखाया गया है डॉटेड लाइंस लगा के, राइट। तो जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है,
सो ये 1 बाय ये डिक्रीज होती जाएगी ये टर्म। सो वी आर हैविंग ऐसे इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेल जीरो इसकी जीरो पे ही वैल्यू होगी, डेल जीरो 1 होगा, अदरवाइज हर एक फ्रिक्वेंसी पे ये टर्म जीरो हो जाएगी। पाई डेल्टा ओम वाली टर्म हर एक फ्रिक्वेंसी पे जीरो होगी, लेकिन जब ओम जीरो होगा तो इसकी वैल्यू पाई आएगी, राइट। तो इसीलिए ये जो है फ्रिक्वेंसी बढ़ने के साथ ये सिग्नल है इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। So this is how we get. Another is what is transfer function? Transfer function क्या होता है? Of a LTI continuous time system in frequency domain. LTI का क्या मतलब है? Anyone? जो हमने लिखा है LTI, इसका क्या मतलब है? Anyone? What do you mean by LTI system? LTI system. linear time हाँ जी, invariant, linear time invariant system. हाँ, वेरी गुड, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। किसने आंसर दिया है? अभिषेक ने। Yes sir. गुड गुड आंसर बेटा, शाबाश। तो दिस इज गुड आंसर। तो व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन देन? द रेशियो ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट and to the Fourier transform of input is called transfer function of linear time invariant continuous time system in frequency domain. ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? फॉरियर ट्रांसफॉर्म आउटपुट का, उसको हम डिवाइड करेंगे फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट के साथ। इसको हम बोलते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ linear time invariant continuous time system, right? अब मान लो कि हमारे पास suppose that we are having xt क्या है? This is input to the continuous time system, और yt क्या है? आउटपुट है continuous time system की। अब हम xt का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? कैपिटल X जे ओम, और हम yt का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो आ जाएगा कैपिटल Y जे ओम, और दोनों को हम डिवाइड करेंगे y जे ओम डिवाइडेड बाय x जे ओम, तो दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन। सो ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट to the Fourier transform of the input, right? Now, suppose we are having a LTI system जो टाइम डोमेन में है, ये इसकी आउटपुट है, ये nth ऑर्डर है सिस्टम है, ये इक्वेशन जो yt में लिखी हुई है ये आउटपुट रिप्रेजेंट कर रही है, जो xt में लिखी हुई है ये इनपुट रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। और ये डेरिवेटिव की जो पावर है इट रिप्रेजेंट्स दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। इसमें nth ऑर्डर सिस्टम है ये, ठीक है, क्योंकि d रेज टू द पावर n है, राइट। सो nth ऑर्डर सिस्टम। So on taking the Fourier transform, इसका जब लेंगे इस इक्वेशंस का, so we can find the ट्रांसफर फंक्शन। इसका हम फिर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास इंपल्स रिस्पॉन्स है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? सिस्टम है, उसको हमने इनपुट दिया, आउटपुट आ गया सिस्टम का yt, इनपुट हमने xt दिया था, ठीक है।
अब उसी सिस्टम को हमने इनपुट क्या दिया, इंपल्स दिया, इनपुट डेल्टा टी दिया, और जो आउटपुट आएगा उसको हम बोलते हैं इंपल्स रिस्पांस, राइट। सो पहले भी मैंने आपको बताया था कि इंपल्स रिस्पांस और स्टेप रिस्पांस में क्या फर्क है। इफ वी गिव सम इनपुट टू द सिस्टम and system produces some output, right? अगर हम सिस्टम को इनपुट इंपल्स सिग्नल दे रहे हैं, इंपल्स इनपुट दे रहे हैं, अगर सिस्टम का आउटपुट आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंपल्स रिस्पांस। whatever will be the output when the input is impulse, the output is called impulse response, right? अगर हम सिस्टम को इनपुट स्टेप इनपुट दे रहे हैं तो जो भी सिस्टम का आउटपुट आएगा उसको हम बोलेंगे स्टेप रिस्पांस, उसको हम बोलेंगे स्टेप रिस्पांस, राइट। सो फॉर ए कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम, if the input is impulse signal, then the output is called impulse response, right? अब हम yt को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आउटपुट है yt, दिस इज इक्वल टू xt इंटू ht। ये स्टार है, इट रिप्रेजेंट्स कन्वोल्यूशन, जो हमने पहले किया हुआ है कन्वोल्यूशन। सो xt स्टार ht, ht क्या है, सिस्टम का कुछ ट्रांसफर फंक्शन है, सिस्टम का फंक्शन है। सो मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सो yt इज इक्वल टू xt स्टार ht। सो दिस इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि कैसे कन्वोल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ, राइट। This tau is called dummy variable of extension, dummy variable for integration, right? अब let us take the Fourier transform on both sides. So h ohm, this is the Fourier transform of ht, x ohm, this is the Fourier transform of xt, y ohm, this is the Fourier transform of yt। सो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के हिसाब से हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt स्टार ht, इसका आएगा xj ओम इंटू xj ओम। ये प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म की, कि अगर हम दो सिग्नल्स है उनकी कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, एक सिग्नल xt है, दूसरा सिग्नल ht है, सो दोनों की कन्वोल्यूशन का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू xj ओम इनटू hj ओम, राइट। नाउ वी नो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ yt, सो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि xt स्टार ht हमने निकाल लिया है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, xj ओम hj ओम, and we know that the Fourier transform of yt ये yj ओम होता है। अब आउटपुट को हम इनपुट से डिवाइड करेंगे, आउटपुट y है, इनपुट x है, yj ओम डिवाइडेड बाय xj ओम, सो ये आ गया हमारे पास hj ओम। अब hj ओम क्या है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। सो दिस इज what we call as the transfer function of the system in frequency domain, right? So ये आप करना, मैं आपको इसकी PDF भेज रहा हूँ अभी WhatsApp पे, ठीक है। इसको भी आपने देखना, ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। हाउ इज इट क्लियर बच्चे? यस सर। हाँ, ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, इसको आपने देखना। लेट मी टेक योर अटेंडेंस नाउ।
Okay, bacha, bye bye then. Thank you, sir.